हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑयल क्यों है और उसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है एक्चुअली। बट मेरे जहन में जब नई नई बातें आती हैं तो मैं बताता रहता हूँ। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये इट इज़ योर बिलोंगिंगनेस, हाउ मच यू बिलोंग to yourself, and then to the family, then to the society, then to your friends, also family and friends, I may say, and finally to the nation, and finally to the world. It is all about how much do you belong. अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये सिंपल सी बात ये हुई, जिस चीज़ से आप बिलोंग करेंगे तो वो आपको अपने आप ही आपका अपने आप ही उसके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इफ़ यू बिलोंग टू अ प्लेस इट बिकम्स योर ओन। इफ़ इट बिकम्स योर ओन, आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। Problem comes when you don't feel that this place is mine, when you don't associate yourself from that place. Suppose you're working in an organization, but you don't associate yourself. You're just working 110%. First of all, you're not enjoying. Second of all, you're not belonging. Since you're not belonging, you really don't care. So, what do? You allow the time to pass. And then it becomes a mundane uh, assignment which you're doing and which you're just doing and which are allowing it to just seep into you, and it might lead to intellectual degeneration. You don't feel associated, you don't feel connected, and that's why you don't feel responsible. So whether sales are going up or down, whether quality is going up or down, whether the company is going up or down, you really don't care. You are in a disassociated mode. Can you be disassociated with family also? I think you can. You means people can. There are people who don't connect to father and mother. They just don't connect. आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, बच्चों बच्चों को जानते होंगे, अपने से थोड़े बड़े बच्चों को जानते होंगे, जिनके पेरेंट्स ने बैंक से लोन लिया, फलाना किया, ढिमकाना किया और बच्चों को कनाडा भेज दिया। कनाडा में फ्री में एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे वहाँ पे भी दुकान जैसी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं। वो बच्चा वहाँ जाके भूल गया। शुरू में वीडियो कॉल हुए, बाद में कॉल हुए, बाद में कुछ नहीं हुआ, एंड दे स्टार्ट यू नो लिविंग देयर ओन लाइफ, living their own pathetic life, if I may use the word, because it is actually pathetic. And they don't belong to the family anymore. आपने मूवी देखी होगी 100 नॉट आउट में क्या हो रहा है? अमिताभ बच्चन इज 100+ एंड हिज सन ऋषि कपूर इज ऑल्सो 80 or 75 something. And Rishi Kapoor also has a son who is in America, and Rishi Kapoor wants to connect back, and Amitabh is telling him that this man, has no connection with you, so please dissociate with him, find something else to, live life. It's based on that, and that is how it was. बहुत खूबसूरत मूवी है वो, आप देखना जरूर। आपको एंड में ना यू विल फील क्राइंग। आई क्राइड व्हेन अमिताभ finally leaves this place. Amitabh means Amitabh is an actor there. So what I mean to say is that there are people who don't even belong to their families. And I'm telling you, if I ask you this question, how much do you belong to yourself? You may not be able to answer me accurately. That is why, interviewer will keep asking questions. He will ask questions related to you in a very, 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 very ways. For example, he will ask you what your strength. He may ask you directly also, but usually ना interviewer कभी direct question पूछते नहीं हैं और उनको पूछना नहीं चाहिए. As per DIPR, no direct questions. But sometimes when you are not opening up, he has no other option but to open up himself and then try. So he might ask you what his strengths and weaknesses, and you will end up saying, sir, I basically what is happening, you don't know your strengths, you don't know your weaknesses, you are stuck somewhere. So I may call it, you don't belong to yourself. If you belong to yourself, you know your weaknesses, and we always have some or the other weaknesses
We might overcome one weakness. It might, there is a guy who was scared of speaking in public. He has started working on it, and he has worked on it, and now speaks fluently. But there's some other weakness that has seeped in. So, are you aware? What is your weakness right now? If I ask, think about it. There are people. So, what is happening? He is asking you through various ways, through your friends, through your family. How much do you belong? And frankly speaking, if you don't belong to your family, you may not belong to the nation. I may say that. Basically, it all begins at home. एक कहावत भी है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. सो जो बंदा अपनी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर सकता है? और फिर कैसे हम उससे एक्सपेक्ट करें कि नेशन को बिलोंग कर सकता है? आप एक सवाल पे मेरे ध्यान दो. मान लो आपके माँ बाप को कोई कुछ बोल दे, गंदा बोल दे, आपको भी आपसे झगड़ा हो रहा है और आपको वो कुछ बोल रहा है और आप भी सुन रहे हो, आप आराम से रिएक्ट कर रहे हो. जैसे वो आपको माँ बाप के बारे में कुछ बोलेगा ना, आपकी ना एकदम भुजाएं फड़फड़ाने लगेंगी और आप बहुत गुस्से में, आप भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ओवरवेलमिंगली रिएक्ट करो. बिग बॉस वगैरह में आपने देखा होगा कि जब नर्व्स पे बात आती है तो वो तब आती है जब आपकी फैमिली के बारे में, आपकी जैसे कोई मैरिड है उसकी वाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में, वाई इट इज़ हैपनिंग. It is happening because you belong there, and when someone scratches you, that soul of your heart, that part of your heart, it pinches you a lot. That is what belonging is all about. Similarly, if you're abroad or if some foreigner speaks ill about your nation, इंडिया ऐसा है वैसा, आपको बहुत गुस्सा आएगा. आइडली आना चाहिए. कई लोगों को उस पर भी गुस्सा नहीं आता है, तो अब उनका कुछ नहीं कर सकता मैं, ना आप कुछ कर सकते हैं. तो sense of responsibility is belonging. How much do you belong? How much you associate? हर तरह से साइकोलॉजिस्ट, हर तरह से इंटरव्यूअर इसी कोशिश में लगा है टू चेक योर बिलोंगिंगनेस, टू चेक योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी ने चिप्स खाया और उसका रैपर फेंक दिया. आप आगे बढ़े, आपने उस रैपर को उठाया और आपने डस्टबिन में डाल दिया. ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं है. आपके अंदर इनग्रेन्ड है. ऐसा नहीं है कि आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको करने के बाद आपको कोई रिकॉग्निशन चाहिए, कोई आपको बोले वाओ. नो. परंतु उस बंदे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने रैपर फेंका, और उस बंदे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पान थूकता रहता है, कितनी लो है. आप मानते हैं कि नहीं मानते? वहीं से शुरुआत हो सकती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. वो बंदा जो लिफ्ट के कोने में थूक देता है पान, उसका क्या एसवार है? वो जरूरत पड़ेगी तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली, सब पे थूकता हुआ चला जाएगा. स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना, बट दिस इज हाउ इट इज. If you do not hesitate in spitting in a public place, you know it will spoil this place, but you don't care. So your belongingness is in doubt. You're not a responsible person. आपकी गाड़ी चौराहे पे जाती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि गरीब बच्चे हैं, कुछ पेन बेच रहे हैं, कुछ छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं जो आप नहीं खरीदना चाहते हैं, पर आप खरीद लेते हैं. वो खरीद के आप रख देते हैं, चाहे वो अगले मोड़ पे किसी और दूसरे गरीब बच्चे को आप ऐसे ही पकड़ा देते हैं. क्या है ये? बिलोंगिंगनेस है. और उनका क्या जो हॉर्न बजाते हैं, जो उन पे चिल्लाते हैं, वो भी तो है इंसान. उनका ऐश्वर्य क्या है? आपकी गतिविधियों, आपकी सोच, आपकी बिहेवियर, आपके डे टू डे बिल्टअप में ही आपका ऐश्वर्य छुपा हुआ है, और आपके ऐश्वर्य में आप छुपे हुए हैं. मेरा क्या काम है एज एन इंटरव्यूअर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, जब मैं आपसे बात करूं, जब मैं आपकी क्लासेस लूं, उन चीज़ों को पकड़ना और उन चीज़ों से आपको मिलवाना और दिखाना, भैया ये क्या कर रहे हो. एंड 99.9% में क्या होगा, आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने आप से मिलेंगे. हो सकता है आपको खुद ही आप पसंद ना आए और आप बदल दें अपने आप को. तो sometimes we do things which we don't want to do, or which we don't know whether it should be done or whether I am doing the right thing or no. The definition of right and wrong is undefined. उसी अनडिफाइंड राइट एंड रॉन्ग का ही प्रॉब्लम है, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो कनेक्ट कीजिए मुझसे,
बातें करेंगे हम लोग, और मेरी क्लासेस में आप मुझे ज्वाइन करें। और जो लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैंने बताया है कई बार, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो अलग हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, जो मुझसे वन ऑन वन इंटरेक्शन एक लंबे प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं, मैं सावधा के साथ एक बहुत खूबसूरत कोर्स लेके आ रहा हूँ। 1 मंथ का कोर्स है, उसमें आप समझ लीजिए वो मेरा ही कोर्स है, और मैं उसमें बहुत सारी हम बातें करेंगे। जैसे ये ओएल क्यू है, आपके ओएल क्यूब में घुसेंगे और आपको आपसे मिलवाएंगे, और आपकी आपसे जब मुलाकात होगी तब बात होगी, और तब शुरुआत होगी व्यक्तित्व के निर्माण की। मेन बात तो वही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और भी बहुत कुछ है जो बोला जा सकता है, और ये अनंत कसा टॉपिक है। ये आपको हर तरह से पकड़ सकता है, जकड़ सकता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कण कण में दिखता है, आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी कंडक्ट में, आपके यू नो थॉट प्रोसेस में। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कीजिए, बिलोंग कीजिए, एसोसिएट कीजिए, बी द पार्ट ऑफ द टीम, नॉट एन आउटसाइडर। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।